بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے مہینے ہم نے پی ایس ڈی ایف ڈیجیٹل پروگرام کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ پی ایس ڈی ایف کی طرف سے پنجاب سکل ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے خواتین کو ڈیجیٹل سکل سکھانے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے اندر خواتین کو مفت ٹریننگ دی جائے گی جس میں ان کو مختلف طرح کی آن لائن ارننگ کے حوالے سے سکل سکھائی جائیں گی، اور خواتین کو مفت کمپیوٹر اور مفت انٹرنیٹ کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ تو اسی حوالے سے ہمیں ہمارے ویورز کے سوالات آ رہے تھے، ہماری بہنوں کے سوالات آ رہے تھے جنہوں نے اپلائی کیا تھا کہ ہم نے اپلائی کر دیا ہے، اب نیکسٹ پروسیجر کیا ہوگا، سلیکشن کی ای میل کب آئے گی، ٹیسٹ کیسے ہوگا، ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کریں۔ اس طرح کے مختلف سوالات ہمیں کمنٹ سیکشن میں آ رہے تھے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے جس میں آپ کے تمام سوالات کا تفصیلی جواب دیا جائے اور آپ کی رہنمائی کی جائے۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں ہم تمام ان سوالات کا جواب دیں گے جو ہمارے ویورز کی طرف سے ہم سے پوچھے جا رہے تھے۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈیٹیل اس پروسیس کا احاطہ کریں گے جس میں ویورز کی طرف سے پوچھے جانے والے تمام سوالوں کا جواب بھی دیں گے، تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ السلام علیکم، ہمارے چینل اسکیم انفو پی کے میں خوش آمدید۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے گی، اور گورنمنٹ کی طرف سے آنے والی تمام نئی اسکیموں کی بر وقت مستند معلومات آپ تک پہنچ سکیں گی۔ تو چلتے ہیں جی، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی، پی ایس ڈی ایف پنجاب سکل ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے خواتین کے لیے ڈیجیٹل پروگرام فیز 3 کا آغاز کیا گیا تھا، جس کی لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ تھی وہ 25 جنوری 2026 تھی۔ اس پروگرام کے اندر خواتین کو آن لائن ارننگ کے لیے مختلف سکلز سکھائی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سکل سیکھنے کے لیے خواتین کو آن لائن ٹریننگ دی جائے گی، اور اس کے لیے خواتین کو گھر بیٹھے مفت کمپیوٹر گورنمنٹ کی طرف سے دیا جائے گا اور مفت انٹرنیٹ ڈیوائس بھی دی جائے گی۔ تو اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی، ڈیٹیل ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس پروگرام کا جو نیکسٹ پروسیجر ہے، اگلا مرحلہ ہے، وہ کون سا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے، مکمل آپ کی رہنمائی کریں گے کہ اس میں جن خواتین نے اپلائی کیا ہے اب نیکسٹ ان کو ای میل کب آئے گی، ٹیسٹ ان کا کب ہوگا، ٹیسٹ کس طرح کا ہوگا، اور اس کے بعد سلیکشن ان کی کیسے ہوگی، ٹیسٹ کی انہوں نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں مکمل رہنمائی آپ کو کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ جی، سب سے پہلا جو سوال تھا وہ ہمارے پاس آیا، وہ یہ تھا کہ جی کیا میری درخواست جمع ہو گئی ہے؟ تو یہ اکثر خواتین یا اکثر وہ لوگ جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ یہ پوچھ رہے تھے، کیونکہ جب آپ لوگ اپلائی کرتے تھے اس وقت جب آپ اپلیکیشن فارم کو سبمٹ کرتے تھے تو لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو گئی ہے، یور اپلیکیشن ہیز بین سبمٹڈ سکسیزفلی۔ بعض اوقات انٹرنیٹ کی کسی خرابی کی وجہ سے یا انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے وہ لکھا ہوا نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو، خواتین کو یہ پتہ نہیں چل پاتا تھا کہ ان کی اپلیکیشن، ان کی درخواست جمع ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اب اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی درخواست جمع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، پی ایس ڈی ایف کے پورٹل پر جانا ہے، وہاں پر جا کر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر درج کرنا ہے۔ تو درج کرنے کے بعد اگر لکھا ہوا آ جاتا ہے جی آلریڈی رجسٹرڈ یا سبمٹڈ لکھا آ جائے تو آپ کی درخواست جمع ہو چکی ہے، یعنی اگر وہاں پر لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ جی یو دس سی این آئی سی از آلریڈی رجسٹرڈ، اگر یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی درخواست جمع ہو گئی ہے اور آپ کا اپلائی ہو چکا ہے۔ جی، دوسرا جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا تھا وہ یہ تھا جی ای میل سلیکشن کی جو ای میل ہے وہ کب آئے گی؟ یعنی ہم نے اپلائی کر دیا ہے لیکن ہماری ای میل، ہمیں ابھی تک ای میل نہیں آئی کہ ہماری سلیکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو ابھی سلیکشن کی ای میل نہیں آئے گی۔ تو اگر آپ پی ایس ڈی ایف کی ویب سائٹ پہ دوبارہ جائیں تو لاسٹ میں ایک سیکشن دیا ہوتا ہے جس کے اندر کافی سارے جو زیادہ تر پوچھے جانے والے سوالات ہوتے ہیں، کوسچنز ہوتے ہیں، تو ان کے جواب وہاں پر دیے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ ایک مہینے کا جو ہے وہ وقت ہے آپ کے کوائف چیک کرنے کا، یعنی ٹیم آپ کی جو اہلیت ہے، پی ایس ڈی ایف کی ٹیم، وہ آپ کی اہلیت، آپ کے کوائف کو وہ چیک کر رہی ہے، اس کا عمل جاری ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ تقریباً ایک مہینہ جاری رہے گا، یعنی
आखिरी जो डेट थी अप्लाई करने की वो 25 जनवरी थी, तो तकरीबन 25 फरवरी तक स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी रहेगा, कवायद चेक करने का अमल जारी रहेगा। और उसके बाद जैसे ही जांच का अमल मुकम्मल होगा, उसके बाद जो अहल उम्मीदवार हैं उनको ईमेल आना शुरू हो जाएंगी, यानी जो अहलियत के मेयार पर पूरा उतरती हैं ख़वातीन, उनको ईमेल आना शुरू हो जाएगी। जो अहलियत का मेयार अप्लाई करते वक्त बताया गया था, जो ख़वातीन उस मेयार के ऊपर पूरा उतरती हैं, उनको सिलेक्शन की ईमेल आना शुरू हो जाएंगी। जी, ईमेल किन उम्मीदवारों को ईमेल आएगी? जी, ईमेल किन उम्मीदवारों को मिलेगी, तो उसके लिए एक ही तरीका है, या जो उम्मीदवार अहल होंगे उनको ईमेल आएगी। अब अहल कौन थे? इसके अंदर जो अहलियत का मेयार था वो दो अहलियत के मेयार रखे गए थे। एक ये था कि जो देहात की देही इलाकों की ख़वातीन हैं वो अप्लाई कर सकती थी, और दूसरा जिनकी तालीम एजुकेशन 16 साल तालीम जिनकी थी वो अप्लाई कर सकती थी। अब जो इस अहलियत के मेयार पर ख़वातीन पूरा उतरती होंगी उनको ईमेल ज़रूर आएगी, जो इस मेयार पर पूरा नहीं उतरती होंगी उनको ईमेल मौसूल नहीं होगी। ये अहलियत का मेयार था। जी, उसके बाद जी टेस्ट की रोल नंबर स्लिप। तो जी सबसे पहले आपको सिलेक्शन की ईमेल आएगी कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है इस प्रोग्राम के अंदर। अगर आप अहलियत के मेयार पर पूरा उतरते हैं तो आपकी को सबसे पहले सिलेक्शन की ईमेल आएगी। सिलेक्शन के बाद जो दूसरी ईमेल आपको आएगी वो रोल नंबर स्लिप की ईमेल होगी। तो फिर आपको टेस्ट के लिए एक रोल नंबर स्लिप जारी की जाएगी। उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपके टेस्ट का वेन्यू भी लिखा होगा कि किस जगह पर आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट की डेट भी लिखी होगी उसी रोल नंबर स्लिप के ऊपर कि किस दिन, किस वक्त और किस जगह पर आपका टेस्ट होगा। अब टेस्ट के हवाले से ये है कि जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं या जिनको बड़े शहर करीब लगते हैं उनका तो टेस्ट उसी जगह पर हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई मुल्तान में रहता है या मुल्तान के करीब तरीन रहता है तो उनका जो टेस्ट है वो मुल्तान के अंदर हो जाएगा। लेकिन जो लोग छोटे शहरों के अंदर रहते हैं, जैसे कि मुल्तान के गिरदोनवा में जो छोटे शहर हैं, शुजाबाद है या खानेवाल है या दुनियापुर है, इस तरह मुख्तलिफ जो छोटे शहर हैं उनका टेस्ट जो है वो या तो करीबी बड़े शहर के अंदर होगा, या ये भी हो सकता है कि उनका जो टेस्ट है वो उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उनका वहाँ पर हो जाए। तो ये रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होगा, रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा कि आपका टेस्ट जो है वो किस जगह पर है और किस डेट को है, किस वक्त है। जी, टेस्ट फिजिकल होगा या ऑनलाइन? तो टेस्ट तो जी ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन का मतलब ये है कि टेस्ट कंप्यूटर पर होगा, लेकिन जो उम्मीदवार है उसको टेस्ट देने के लिए टेस्ट सेंटर पर खुद जाना होगा। टेस्ट सेंटर के ऊपर वहाँ पर कंप्यूटर मौजूद होंगे, वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर अलग से, हर उम्मीदवार को अलग कंप्यूटर दे दिया जाएगा और उस कंप्यूटर के ऊपर ही उसका टेस्ट लिया जाएगा। यानी टेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर होगा, लेकिन टेस्ट देने के लिए आपको टेस्ट सेंटर पर जाना होगा। आप घर बैठकर टेस्ट नहीं दे सकते। टेस्ट कहाँ होगा? तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि टेस्ट जो है वो बड़े शहर के अंदर होगा या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल पर भी हो सकता है। और टेस्ट का जो सेंटर होगा वो ज़्यादातर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपसेस बनाए जाते हैं टेस्ट सेंटर, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में क्योंकि उम्मीदवार होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कंप्यूटर मौजूद होते हैं, अलग से कंप्यूटर अरेंज नहीं करने पड़ते, इसलिए ज़्यादातर जो टेस्ट हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस के अंदर होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर उम्मीदवार ज़्यादा हों तो जो तालीमी बोर्ड हैं, जैसे मुल्तान तालीमी बोर्ड है या लाहौर तालीमी बोर्ड है, इस तरह जो तालीमी बोर्ड हैं उनके जो इम्तिहानी मराकज़ होते हैं वहाँ पर भी हो सकता है कि टेस्ट ले लिया जाए, उनको टेस्ट सेंटर बना दिए जाए और वहाँ पर कंप्यूटर की जो मतलूबा सहूलत है उसको भी मैसर किया जाए। तो इन दो जगहों पर टेस्ट हो सकता है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस के अंदर टेस्ट होगा। जी, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, यानी किन किन मज़ामीन से टेस्ट होगा, टेस्ट के अंदर कौन कौन से जो मज़ामीन हैं उनसे सवाल आ सकते हैं। तो टेस्ट जो है वो इन 6 मज़ामीन के अंदर से होगा, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सवालात टेस्ट के अंदर पूछे जाएंगे, इंग्लिश से रिलेटेड सवालात पूछे जाएंगे। अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये बेसिक कंप्यूटर जो है उस हवाले से सवालात पूछे जाएंगे, ज़्यादा एडवांस लेवल के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश की अगर बात की जाए तो जो बेसिक इंग्लिश है उस हवाले से सवाल आएंगे। इसी तरह बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ, बेसिक पाक स्टडी और बेसिक साइंस। तो ये 6 के 6 जो मज़ामीन हैं इनके बेसिक सवालात पूछे जाएंगे, ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा मुश्किल सवालात नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आपने इन 6 मज़ामीन की जो तैयारी करनी है टेस्ट के लिए वो बेसिक सवालात की ही करनी है, ज़्यादा एडवांस लेवल की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट पैटर्न क्या होगा जी?
तमाम का पूरा जो टेस्ट है वो MCQs के ऊपर मुश्तमिल होगा, मारूजी सवालात के ऊपर मुश्तमिल होगा। टोटल जो मार्क्स हैं टेस्ट के वो 45 से 50 हो सकते हैं, और इसके अंदर किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अगर आपका जवाब गलत हो जाता है तो उसके नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो इसलिए आपने ऐसे करना है कि अगर 50 नंबर का आपका पेपर है और उसमें से आपको 40 सवाल ठीक आते हैं और 10 सवाल आपको नहीं आते, तो जो 10 सवाल आपको नहीं आते वो आपने खाली नहीं छोड़ने, उनको भी आपने लाजमी टिक करना है। हो सकता है कि तुक्का लग के वो सवाल आपका ठीक हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए सवाल को खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो MCQs मारूजी सवाल होंगे, तकरीबन 50 नंबर का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेस्ट का रिज़ल्ट और कंप्यूटर का हसूल। तो जी टेस्ट का जो रिज़ल्ट होगा, टेस्ट का जो नतीजा होगा, वो तकरीबन 1 से 2 महीने में, 1 से 2 माह के अंदर वो जारी कर दिया जाएगा। और उस अगर आपका टेस्ट पास हो जाता है तो आपको उस टेस्ट पास होने की भी ईमेल मौसूल हो जाएगी। और जिन उम्मीदवारों का टेस्ट होगा सिर्फ उनको ही मुफ्त कंप्यूटर दिए जाएंगे, उन्हीं की सिलेक्शन होगी और उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों का टेस्ट पास नहीं होगा उनको कंप्यूटर भी नहीं दिए जाएंगे, उनको प्रोग्राम में शामिल भी नहीं किया जाएगा। जी टेस्ट की तैयारी का जो तरीका है वो क्या है जी? तरीका बिल्कुल सादा है, आपको ज़्यादा कोई मुश्किल सवालात, मुश्किल चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम के तमाम मज़ामीन जो मैंने आपको 6 मज़ामीन बताए हैं, उनके जो बुनियादी सवालात हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है जी? मॉक टेस्ट हल करने हैं। मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे? मॉक टेस्ट जो है वो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे मौजूद होते हैं। हर सब्जेक्ट के ऊपर आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे, जैसे इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चन अगर आप सर्च कर लें, साइंस या जनरल नॉलेज या मैथ के बेसिक क्वेश्चन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट नज़र आ जाएंगी सामने। तो उनमें से किसी को भी आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट दिए होते हैं। तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वहाँ पे उन मॉक टेस्ट के जवाब भी दिए होते हैं। तो आप मॉक टेस्ट हल करें और उसके बाद जब आप उस टेस्ट को मुकम्मल कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो लास्ट में आपको एक रिज़ल्ट भी शो हो जाएगा कि आपने कितने सवालों में से कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, और जो सवाल आपने गलत किए हैं उनके सही जवाब भी वहाँ पर दिए होते हैं। तो आपने बेसिक बुनियादी सवालात की प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है इंटरनेट के थ्रू। इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा आपको मुश्किल तरीका का इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किताबें इकट्ठी करें और किताबों को पढ़ना शुरू कर दें, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सादा आसान तरीका यही है। तो जी ये थी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट जी टेस्ट के लिए तमाम उम्मीदवारों को हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात, गुड लक। मज़ीद इस हवाले से अगर आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल है, कोई रहनुमाई आप चाहते हैं, कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से या इस तरह के मुख्तलिफ कोई और प्रोग्राम के हवाले से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देंगे। वैसे हमने कोशिश की है तमाम सवालात का जवाब दिए जाए, आपकी रहनुमाई की जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में है, कोई ऐसा सवाल जो हम नहीं यहाँ पर डिस्कस कर सके, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह फ़ौरी आपके सवाल का जवाब देंगे। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, इसी तरह की गवर्नमेंट की मुख्तलिफ़ स्कीमों के हवाले से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल स्कीम इन्फो PK पर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली तमाम नई स्कीमों की बर वक्त, दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात हम फराहम करते हैं। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको गवर्नमेंट की तमाम स्कीमों की बर वक्त, दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात मिलती रहेंगी। आज की इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।